السلام علیکم ناظرین، KB نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راما راؤ نے کہا ہے کہ حکومت ہند کی کئی رینکنگز اور اشاریہ جات یہ دکھاتے ہیں کہ تلنگانہ سرکردہ مقام کی حامل ریاست ہے۔ تلنگانہ سوچھ سرویکشن گرامین رینک میں سرکردہ مقام کی حامل رہی۔ سوچھ رینکنگ میں تلنگانہ کی بلدیات نے 16 ایوارڈز حاصل کیے، لیکن تلنگانہ کی اپوزیشن کا کہنا ہے کہ ہماری حکومت نے زیادہ کچھ نہیں کیا ہے۔ یہ کس طرح کی گمراہ کن منطق ہے؟ تارک راما راؤ، جو سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ٹویٹر پر سرگرم ہیں، انہوں نے اس خصوص میں ایک ٹویٹ کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ ریاست میں اقلیتوں کی ترقی سے کسی محکمے کو دلچسپی نہیں ہے اور جو عہدیدار و محکمہ جات اقلیتوں کی معاشی و تعلیمی ترقی کی دہائی دیتے ہیں، وہ دراصل اپنی کرتوتوں پر پردہ ڈالنے، مسلمانوں کی جھوٹی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حج ہاؤس کی عمارت میں اقلیتی خواتین کے لیے وی ہب کے ذریعے تربیتی کورسز اور روزگار سے مربوط کورسز کی تربیت کے ساتھ دور حاضر کے تجارتی اصولوں سے واقف کرواتے ہوئے روزگار فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن اس منصوبے کو ترک کر دیا گیا۔ حج ہاؤس کی بالائی منزلوں پر سہولتوں سے استفادہ کے لیے جے شرنجن نے دورہ کر کے تفصیلات حاصل کی تھی اور اعلان کیا تھا کہ خواتین کے لیے مخصوص وی ہب کے تعاون سے حج ہاؤس میں اقلیتی خواتین کے لیے مرکز کا آغاز کیا جائے گا، تاکہ انہیں روزگار سے مربوط کورسز کی تربیت کے علاوہ مناسب رہبری اور رہنمائی سے کاروبار کے لیے مدد فراہم کی جا سکے۔ لیکن اعلان کے کئی مہینے کے بعد بھی سرگرمی نہ رہنے پر جب دریافت کیا گیا تو انکشاف ہوا کہ اعلیٰ عہدیداروں کے عدم تعاون و عدم دلچسپی کے سبب وی ہب کے ذمہ داروں نے اقلیتی خواتین کے لیے مخصوص مرکز کے منصوبے کو ترک کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت کے ادارہ وی ہب نے اقلیتی بہبود کے عہدیداروں کی عدم دلچسپی کے سبب اس منصوبے کو ترک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف جسٹس تلنگانہ ہائی کورٹ جسٹس اجل بھویان نے عوام کو انصاف رسانی کے لیے مؤثر کارروائی کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ ریاست کی عدالتیں عوام کے دستوری حقوق کے تحفظ کے لیے تیار ہیں۔ جسٹس اجل بھویان نظام آباد ضلع کلیکٹریٹ میں لیگل سروسز اتھارٹی کے پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے روٹری کلب کی جانب سے 150 معذورین میں آلات تقسیم کیے اور روٹری کلب کی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ انسانی خدمت کے جذبے کے تحت رضاکارانہ اداروں کی سرگرمیاں قابل ستائش ہیں۔ اس موقع پر جسٹس نوین راؤ، جسٹس سری دھر، ضلع جج کے سنیتا اور ضلع کلیکٹر نارائن ریڈی بھی موجود تھے۔ اس ہفتے ہونے والے جائزے کے بعد قدرتی گیس کی قیمتیں اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ سکتی ہیں۔ ذرائع نے یہ اطلاع دی ہے۔ قدرتی گیس کا استعمال گاڑیوں کے لیے بجلی، کھاد اور CNG بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ملک میں پیدا ہونے والی گیس کی قیمت کا فیصلہ حکومت کرتی ہے۔ حکومت کو گیس کی قیمتوں میں اگلی نظر ثانی 1 اکتوبر کو کرنی ہے۔ توانائی کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے بعد سرکاری آئل اینڈ نیچرل گیس کارپوریشن کے پرانے فیلڈ سے پیدا ہونے والی گیس کے لیے ادا کی جانے والی شرح $6.1 فی یونٹ ملین برٹش تھرمل یونٹ سے بڑھ کر $9 فی یونٹ تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ ریگولیٹڈ ایریاز کے لیے اب تک کی بلند ترین شرح ہوگی اور بینچ مارک بین الاقوامی قیمتوں میں اضافے کے درمیان اپریل 2019 کے بعد قدرتی گیس کی قیمتوں میں یہ تیسرا اضافہ ہوگا۔ حکومت گیس کی قیمت ہر 6 ماہ بعد 1 اپریل اور 1 اکتوبر طے کرتی ہے۔ یہ قیمت امریکہ، کینیڈا اور روس جیسے گیس کے ذخائر والے ممالک کے پچھلے 1 سال کے نرخوں کی بنیاد پر 6 ماہی وقفے سے طے کی جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں 1 اکتوبر سے 31 مارچ 2023 تک گیس کی قیمت جولائی 2021 سے جون 2022 تک کی قیمت کی بنیاد پر طے کی جائے گی۔ اس وقت گیس کی قیمتیں بہت زیادہ تھیں۔
जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है। बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. आंध्र प्रदेश के एल्लोर जिले के जंगलाती इलाकों में पाया जाने वाला जानवर पेंगोलिन, जिसे उर्फ आम में मंगूस कहा जाता है, उसकी चीन और दीगर ममालिक में काफी मांग है। इस जानवर को अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा इस जानवर के हुसूल के लिए आंध्र प्रदेश में कई टोलियां सरगर्म हैं। बताया जाता है कि बैनुल अक़वामी मार्केट में एक पेंगोलिन की कीमत तकरीबन 20 लाख रुपए तक है, क्योंकि उसे इंतहाई कीमती अद्वियात की तैयारी के लिए चीन में इस्तेमाल किया जाता है। एल्लोर के इलाकों में इस जानवर की तलाश में टोलियां सरगर्म हैं, तो दूसरी तरफ महकमे जंगलात के ओहदेदार जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात कर रहे हैं। ये जानवर जिसके जिस्म पर जल्द खारदार होती हैं, उसे दूसरा जानवर आसानी से शिकार नहीं बना सकता। ये जानवर इंतहाई ताकतवर और मजबूत होता है। चीनीज पेंगोलिन, एशिया पेंगोलिन के अलावा मजीद 2 अक़साम के पेंगोलिन दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं। उनमें से एक पेंगोलिन की काफी मांग है। 4 पैरों के साथ ये जानवर तकरीबन 20 साल जिंदा रह सकता है। ये जंगलाती इलाकों के अलावा बारिश के मुकामात पर नजर आता है। पहली मर्तबा इस जानवर को 1821 ईस्वी में दरियाफ्त किया गया। ये जानवर 2 साल में एक मर्तबा बच्चों को जन्म देता है और बंदर की तरह अपने बच्चों को अपने साथ रखता है। ये दिन से ज्यादा रात की तारीकी में नजर आता है। इस जानवर में अपने दिफा और हमले की सलाहियत मौजूद होती है। चीन में जिन अद्वियात में इस जानवर का इस्तेमाल होता है उनकी तफसीलात भले ही मख्फी हैं, लेकिन बैनुल अक़वामी मार्केट में एक पेंगोलिन की कीमत तकरीबन 20 लाख बताई जाती है। इसी दौरान महकमे जंगलात के हुकाम ने एल्लोर और दीगर मुकामात पर पेंगोलिन के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो मरकूज की है और सरगर्म टोलियों पर नजर रखी जा रही। बताया जाता है कि हाल ही में 2 अफराद को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज किया गया। पेंगोलिन को पकड़ने पर 5 साल की कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा हो सकती है। बैरूनी ममालिक में मुलाजिमत का ख्याल आए तो ज्यादातर हिंदुस्तानियों की तरजीह अमेरिका होती है और अमेरिका के लिए H1B वीजे के हुसूल के लिए हर किसी को मसाई करते देखा गया। दीगर ममालिक के मुकाबले अमेरिका में रोजगार के बआसानी हुसूल के यकीन के साथ हर साल बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी शहरी वीजा के लिए अमेरिकी सिफारतखाने या कॉन्सुलेट्स का रुख करते हैं। मुलाजिमत के लिए अमेरिका रवानगी के ख्वाहिशमंदों को H1B वीजा का हुसूल जरूरी होता है। उसे वर्किंग वीजा भी कहा जाता है। अमेरिका में मुलाजिमत करने वाले अफराद मुस्तकबिल में वहीं पर सुकूनियत इख्तियार करने की कोशिश करते हैं ताकि शहरियत हासिल हो जाए। शहरियत के हुसूल से कबल ग्रीन कार्ड का हुसूल जरूरी होता है। H1B और ग्रीन कार्ड से मुतल्लिक़ क़वानीन में अमेरिकी हुकूमत ने बाज़ तरमीमात और आसानियां पैदा करते हुए हिंदुस्तानियों के लिए खुशी में इजाफा कर दिया है। बताया जाता है कि अमेरिकी हुकूमत ने H1B वीजा और ग्रीन कार्ड वीजा के प्रोसेसिंग की मोहलत को घटाकर 6 माह करने का फैसला किया है। इस फैसले को प्रेसिडेंशियल कमीशन की मंजूरी बाकी है। इस कानून की मंजूरी के साथ ही अमेरिका में बसने वाले लाखों हिंदुस्तानियों और चीन के शहरियों को फायदा होगा। एशियन अमेरिकन अफराद की रिहाइश से मुतल्लिक़ उमूर तय करने के लिए एडवाइजरी कमीशन ने 12 मई को एक रिपोर्ट हुकूमत को पेश की। बताया जाता है कि अगस्त में ये रिपोर्ट अमेरिकी सदर जो बाइडन की मंजूरी के लिए रवाना की गई। व्हाइट हाउस की दाखिली उमूर से मुतल्लिक़ कौंसिल को ये रिपोर्ट हवाले की गई। वाज़ेह के कोविड वबा के
नतीजे में सफरी पाबंदियों के सबब ग्रीन कार्ड की इजराई में काफी ताखिर हो रही थी। बहुत कम तादाद में ग्रीन कार्ड जारी किए जा रहे थे। हुकूमत के नेशनल वीजा सेंटर ने बड़े पैमाने पर तकर्रुरात करते हुए ग्रीन कार्ड की दरख्वास्तों की यकसोई की सिफारिश की है। తంత్ర మంత్ర యంత్ర के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. My address Baba Ajam Khan Bengali, Malakpet, Hyderabad. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहें कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज़।